रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो। माई सेल्फ इज डॉक्टर स्नेहलता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, RLSY कॉलेज, रांची। Today I am going to deliver a lecture on the simple protein. In previous lecture on protein and its role has already been delivered. I have also told about the reference books about this concern. So let us proceed about the simple protein. तो चलिए हम लोग आगे की ओर सिंपल प्रोटीन के बारे में जानते हैं। सिंपल प्रोटीन क्या है? एक्चुअली प्रोटीन जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिंपल होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो सिंपल प्रोटीन है। दिस वन द टॉपिक ऑफ सेमेस्टर 3 एंड पेपर 7। ये सेमेस्टर 3 का पेपर 7 का ये टॉपिक है। तो चलिए सिंपल प्रोटीन क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो सिंपल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स ओनली एंड नो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कोई भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। सो द एलिमेंट्री कंपोजिशन आर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ solubility, the simple proteins are classified into two categories. Solubility के आधार पर इसे भी हम दो भागों में ये बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज द फाइब्रस प्रोटीन। देन द ग्लोबुलर प्रोटीन, as its names indicates, globular, that means spherical. The globular proteins are spherical and oval in shape, soluble in water and the other solvent, and these are digestible. Again, these globular proteins are of various types. Let us come to one by one. The first one is albumin. Albumin it is soluble in water and dilute solution of salt. Second one is coagulated by heat. जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये coagulate हो जाता है. These are among the smallest of the common proteins and the example is the egg white albumin, जिसे कि ओवा albumin भी कहते हैं, and the lacta albumin in milk में पाया जाता है and the blood albumin. Then the next one is the histone. Second type is the histone. These are the strongly basic protein and rich in the lysine and arginine amino acid. This protein is soluble in water and dilute acids but insoluble in dilute ammonium hydroxide. Example is the thymus histones and histones of codfish sperm. The next type is glutathione. Glutathione is soluble in dilute acid and alkalis and mostly found in the plants. Example is glutathione in wheat and originin in rice. The next type of the globular protein is the globulins. The globulins proteins are soluble in neutral and dilute salt solution but insoluble or sparingly soluble in water. Example is the serum globulins, which is found in the egg yolk, and blood serum globulin. Example, blood serum globulins are the antibodies and the blood fibrinogen. Then the next type of the globular protein is prolamins. This is soluble in 70% of alcohol and the example is gliadin, which is found in wheat, and gene, which is found in maize. Then the next type of the globular proteins are the protamines. The protamines proteins are strongly basic and resembles histone, but it is smaller in size. And these proteins are soluble in ammonium hydroxide.
These are also found in association with nucleic acid. Example of these proteins is the sperm protein. The next second type of the simple protein is the fibrous proteins, and these are the insoluble protein. The characteristic feature of these fibrous proteins are these are फाइबर लाइक इन शेप, जैसा कि इसका नाम है फाइबरस प्रोटीन्स. सो these are fiber like in shape and these are insoluble in water. जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन सोलुबल था और फाइब्रस प्रोटीन इनसोलुबल है. दिस इज इनसोलुबल इन वाटर. Albuminoids and scleroproteins constitute the most predominant group of the fibrous protein. फाइब्रस प्रोटीन भी जिस तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसी तरह से फाइब्रस प्रोटीन्स आर आल्सो ऑफ 3 टाइप्स. ये भी 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द कोलाजन. पहला वाले को कहते हैं कोलाजन. अब देखिए कोलाजन क्या है. तो कोलाजन्स आर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स एंड लैकिंग ट्रिप्टोफैन. सेकेंड, तो कोलाजन्स ऑन बॉइलिंग विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड्स yield जिलाटिन विच इज सोलूबल एंड डाइजेस्टिबल. तो कोलाजन में हम लोग क्या देखें कि कोलाजन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स है जिसमें कि ट्रिप्टोफैन लैकिंग होता है. सेकेंड कैरेक्टर्स में क्या देखें कि कोलाजन्स ऑन बॉइलिंग विथ वाटर के साथ अगर बॉयल करते हैं तो ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे जिलेटिन कहते हैं. एंड दिस जिलेटिन विच इज सोलूबल एंड डाइजेस्टिबल होता है. तो सेकेंड टाइप ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन्स जो है उसका नाम है केराटिन. अब देखिए केराटिन क्या है. तो केराटिन आर प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर. ये कहाँ पाया जाता है? ये एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर में पाया जाता है. एग्जाम्पल्स के लिए नेल्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, हेयर्स हो गए. मतलब कि दीज आर फाउंड इन हेयर्स, नेल्स एंड हॉर्न्स. The human hair keratin contains as much as 14% of cysteine. ह्यूमन के हेयर केराटिन में क्या है कि 14% ऑफ सिस्टीन जो है पाया जाता है. इसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं उसे इलास्टिन कहते हैं. तो इलास्टिन क्या है? तो दीज आर प्रोटीन्स फाउंड इन इलास्टिक टिश्यू. ये बॉडी के जो इलास्टिक टिश्यू है उसमें पाए जाते हैं, सच एज टेंडन्स एंड आर्टरीज. तो टेंडन्स और आर्टरीज में जो पाए जाने वाले प्रोटीन्स है उसे इलास्टिन कहते हैं. और इलास्टिन प्रोटीन क्या है? ये फाइब्रस प्रोटीन है. तो इस तरह से आज हम लोग देखें कि सिंपल प्रोटीन क्या है, सिंपल प्रोटीन कितने तरह के होते हैं और ये उसके अंदर फिर कितने सब डिवीजन में इसे बांटा गया है. तो सिंपल प्रोटीन को हम लोग एक बार समराइज कर ले कि सिंपल प्रोटीन्स वैसा प्रोटीन्स है जो कि केवल एमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, उसमें कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है नहीं लगे हुए होते हैं. इसलिए इसका जो एलिमेंट्री कंपोजिशन है वो प्रोटीन में उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर ही होते हैं. तो सोलबिलिटी के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, ग्लोबुलर एंड फाइबरस. ग्लोबुलर जो है ये सोलूबल है और फाइब्रस जो है ये इनसोलूबल है. ग्लोबुलर के भी सेवरल कैटेगरीज में बांटा गया है जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, और फाइब्रस को भी सेवरल कैटेगरीज 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. तो इस तरह से आज हम लोगों ने सिंपल प्रोटीन के बारे में पढ़ा और इसे कंप्लीट किया. थैंक यू.